کاسا اس کٹورے کو کہتے ہیں جس میں فقیر بھیک مانگتا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، خلوت میں اٹھاؤں تب، جلوت میں اٹھاؤں تب، اندھیرے میں اٹھاؤں تب، اجالے میں اٹھاؤں تب، رات میں اٹھاؤں تب، دن میں اٹھاؤں تب، خوشی میں اٹھاؤں تب، غمی میں اٹھاؤں تب، صحت میں اٹھاؤں تب، بیماری میں اٹھاؤں تب، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالباً آپ سبھی حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ آج ربیع الاخر شریف کی 4 تاریخ ہو چکی ہے، جو کہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا آج کی اس محفل کی خاص وجہ یہ ہے کہ عالی جناب خلیق اللہ خان صاحب کی طرف بچے کی ولادت ہوئی اور اس کی پیدائش کی خوشی میں یہ جشن ہے۔ اللہ پاک حضور غوث اعظم کے صدقے تو خیر اس بچے کو نیک نیتی کے ساتھ امن و سکون کی عمر خضر عطا فرمائے۔ جب کسی کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک ان کے ماں باپ پر 3 حق رکھ دیتا ہے بچے کے۔ میں چند منٹ آپ سے باتیں کرنے والا ہوں، شاید اس میں کی کوئی بات آپ کے کام کی ہو اور اس پر آپ عمل کریں، جس سے آپ کے فائدے بھی ہوں، قیامت کے سوالوں میں کچھ جواب بن سکیں۔ کسی کے گھر جب کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، اس اولاد کے آتے ہی آتے 3 حق۔ اولاد کے 3 حق ماں باپ پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی پیدائش ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں، بہترین نام چنیں، تجویز کریں، علماء سے مشورے کریں، پھر اچھا نام رکھیں۔ گڈو پپو جیسے نام نہ رکھیں۔ قیامت کے میدان میں ہر آدمی اپنے نام سے پکارا جائے گا، اور وہاں آدم سے لے کر قیامت تک سارے لوگ موجود ہوں گے، لوگوں کے اچھے اچھے نام ہوں گے، اور اگر آپ کے بچے کا برا نام ہوگا اور وہ اسی برے نام سے پکارا جائے گا تو آپ کو اور آپ کی اولاد کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اچھا نام رکھیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی پرورش، تعلیم و تربیت کے ساتھ کریں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اچھے خاندان سے ان کا نکاح کر دیں۔ یہ 3 فرض ماں باپ پر ہیں اولاد کے۔ اگر ان میں سے کسی حق میں کوتاہی ماں باپ کرتے ہیں تو قیامت کے میدان میں وہ پکڑے جائیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے میں جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جب کچھ کرنا چاہتا ہے، ایک سے چلا ورنہ کیوں چلے گئے، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی
सैयदना शफीअना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं जब कोई काम करने का इरादा करता हूँ तो मैं उसे करता नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं जब कोई काम करने का इरादा करता हूँ तो मैं उसे करता नहीं, सिर्फ कहता हूँ कुन हो जा, फयाकुन हो जाता है। अल्लाह ने इतनी कायनात बनाई, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चांदो सूरज सितारे कहकशां, बागात महलात सब कुछ, पहाड़ों की मेखें ज़मीन पे डाली, समंदर बहाए, दरिया बहाए, जानवर पैदा फरमाए, पूरी कायनात को बनाया। बस अल्लाह ने एक बार फरमाया कुन हो जा, सब होता चला गया। एक बार उसने कहा कुन, ज़मीन बन गई। उसने कहा कुन, आसमान बन गया। उसने कहा कुन, फलक बन गया। उसने कहा कुन, नबादात बन गए। उसने कहा कुन, जमादात बन गए। उसने कहा कुन, अर्श बन गया। उसने कहा कुन, जन्नत बन गई। उसने कहा कुन, जहन्नम बन गया। उसने कहा कुन, लाह बन गया। उसने कहा कुन, कलम बन गया। उसने कहा कुन, कुर्सी बन गई। उसने कहा कुन, अर्जियात बन गए। उसने कहा कुन, फल्कियात बन गए। सारी कायनात एक लफ्ज़े कुन से बनाई गई। मगर रब फरमाता है जब बारी आई इंसान को पैदा करने की, खलक़्तुहु बियदैया, रब फरमाता है हमने ज़मीन को कुन से बनाया, हमने आसमान को कुन से बनाया, हमने लौहो कलम को कुन से बनाया, हमने जन्नतो जहन्नम को कुन से बनाया, हमने अर्शो कुर्सी को कुन से बनाया, हमने नबातातो जमादात को कुन से बनाया। मगर इंसान को अपने हाथों से बनाया है, इंसान को अपने हाथों से बनाया है। रब फरमाता है खलक़्तुहु बियदैया, इंसान कितनी खूबसूरत चीज़ है। मैं कुछ बातें आपसे ऐसी करने लगा हूँ। आज बच्चे की पैदाइश का मौका है, गौसे आज़म के ताल्लुक़ से आपने सुना भी है। इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख में आप सुनेंगे और पूरा महीना महफिलें होंगी। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है आपको बताऊँ, नेमतें किसके पास नहीं। अल्लाह फरमाता है वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम हमारी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने तुम्हें क्या नहीं दिया है। सूरह रहमान में फरमाता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। आँख को झुठलाओगे, नाक को झुठलाओगे, कान को झुठलाओगे, दंदान को झुठलाओगे, हाथों को झुठलाओगे, सांसों को झुठलाओगे, गुर्दे को झुठलाओगे, जिस ज़मीन पे चलते हो इसे झुठलाओगे, जिन फलों को खाते हो उन्हें झुठलाओगे, जिस दूध को पीते हो उसे झुठलाओगे, जो आबो हवा लेते हो उसे झुठलाओगे, अच्छे माँ बाप दिए इसे झुठलाओगे, अच्छी औलाद अता की उसे झुठलाओगे, माल अता किया उसे झुठलाओगे, फलों और फूलों की खुशबू को झुठलाओगे। तुम क्या क्या झुठलाओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब बंदा कहता है फला मालदार, फला मालदार, फला अमीर, हम गरीब। आप बताइए कौन अमीर कौन गरीब। जिसके पास माल ज़्यादा वो मालदार, जिसके पास मकान बढ़िया वो मालदार, जिसके पास कार अच्छी वो मालदार, जिसके पास ज़मीन के रकबे ज़्यादा वो मालदार, जिसके पास सूट बूट अच्छा वो मालदार। नहीं नहीं, आप कहेंगे कि हाँ मालदार वही है जिसका बैंक अकाउंट जो है भरा पड़ा हो, मालदार वही है जिसके खाते लंबे लंबे हो, मालदार वही है ज़मीन जिसके नाम इंतखाब ज़्यादा निकलते हो, मालदार वही है जिसके दरवाजे पर गाड़ियाँ खड़ी हों, मालदार वही है जिसका सूट बूट ऊंचा हो। नहीं, आप सूट बूट वालों से पूछो, आप सूट बूट वालों से पूछो, गरीबों के घर में ऐसी ऐसी नेमतें हैं, वो कहेंगे खुदा की कसम मकान ले लो ये हमें दे दो, ज़मीन ले लो ये हमें दे दो, कार ले लो ये हमें दे दो, कार ले लो औलाद दे दो, मकान ले लो औलाद दे दो, ज़मीन ले लो औलाद दे दो,
जो है हमारा रुतबा ले लो, हमें औलाद दे दो, हमारे कपड़े ले लो, हमें औलाद दे दो, हमारा सोना ले लो, हमें औलाद दे दो, हमारे बैंक का अकाउंट ट्रांसफर करवा लो, हमें औलाद दे दो। ऐसी ऐसी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, फिर भी हम गरीब हैं। एक खलीफा हुए हैं बादशाह, हारून रशीद बादशाह हुए, उनका दरबार लगा है, महफिल सजी हुई है। आप दरबार में प्यासे हो जाते हैं, पानी पीने के लिए एक खादिम को हुक्म देते हैं, पानी लेकर के आओ। पानी का प्याला लेकर आता है, प्याला हारून रशीद बादशाह अपने हाथ में लेते हैं। हाथ में प्याला आया था कि महफिल से एक फकीर उठा, बोला बादशाह सलामत, प्याला भी पिएंगे नहीं आप जब तक हमारे सवाल का जवाब ना दे दे। आप पानी पी नहीं सकते जब तक हमारे सवाल का जवाब ना दे दे। हारून रशीद ने कहा हम नहीं पीते, बताओ सवाल क्या है। हजरत उस फकीर ने अर्ज किया बादशाह सलामत ये बताओ, अगर आप किसी सहरा में हो जहाँ पानी न मैसर हो, किसी रेगिस्तान में हो जहाँ पानी न हो, आपको शिद्दत की प्यास लगी हो, आपकी हलक सूख रही हो और एक शख्स एक प्याला लेकर नमूदार हो जाए और वो कहे हम पानी तुम्हें दे सकते हैं मगर इसकी कीमत लगेगी, बताओ बादशाह सलामत आप कितनी कीमत इस पानी की लगा सकते हैं। बादशाह हारून रशीद ने कहा मैं आधी सल्तनत इस पानी के बदले में दे सकता हूँ। हारून रशीद बादशाह ने कहा अगर किसी सहरा में फंस जाऊं, अगर किसी रेगिस्तान में फंस जाऊं, शिद्दत की प्यास लगी हो, पानी नजर ना आता हो, एक शख्स एक प्याला लेके आए और कहे पानी सिर्फ मेरे पास है, अगर आपको प्यास बुझाना है कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं आधी सल्तनत दे दूंगा, पानी खरीद लूंगा। आपसे उस फकीर ने कहा बादशाह पानी को पी लीजिए। बादशाह ने पानी को पी लिया। कहा एक सवाल और बाकी है, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा दूसरा सवाल क्या है। कहा अगर वो पानी आपने पी लिया और ये पानी पेशाब बन के बाहर ना आए, कई रोज हो जाए, आपको तकलीफ पैदा हो जाए, आपको परेशानी लाहिक होने लगे, तमाम दुनिया के तबीब बोले हमारे पास इसका इलाज नहीं कि हम पेशाब उतार सके। एक शख्स आए अपनी मुट्ठी में दवाई लाए और वो बोले बादशाह हम तुम्हारा पेशाब उतार देंगे, दवा हमारे पास है मगर कीमत लगेगी। अब आप कितनी कीमत दे सकते हैं। हारून रशीद बोला कि हम इतनी कीमत दे देंगे कि आधी सल्तनत उस पेशाब उतारने वाले को दे देंगे। उस फकीर ने कहा बादशाह फिर तुम मालदार कहाँ हो, फिर तुम अमीर कहाँ हो, फिर तुम रईस कहाँ हो, फिर तुम ताजदार कहाँ हो, फिर तुम सुल्तान कहाँ हो। तुम्हारी सुल्तानी की कीमत तो एक प्याला पानी भी नहीं है। एक प्याला पानी में तुम्हारी सल्तनत बिक सकती है। आप सोचो अल्लाह हमें वो नेमतें, हम गरीब हैं तब भी पिलाता है, हम अमीर हैं तब भी पिलाता है, हम फकीर हैं तब भी पिलाता है, हमारे घर में गाड़ी नहीं तब भी हम पानी पीते हैं, बैंक में पैसा नहीं तब भी हम पानी पीते हैं, हमारे पास खेत नहीं तब भी हम पानी पीते हैं, हम अमीरों में गिने नहीं जाते तब भी हम पानी पीते हैं, सुबह शाम पीते हैं, रातों दिन पीते हैं। आप सोचें आप कितने मालदार हैं, आपके पास कितनी नेमतें हैं, आपके पास कितनी लाजवाल नेमतें हैं। अल्लाह फरमाता है वाम्मा बेनियामती रब्बी का बहादिस, तुम हमारी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, तुम हमारी नेमतों को गिन नहीं सकते। अल्लाह ने हमारा जो वजूद बनाया है कितना अजीम बनाया है। आप किसी किताब को ना पढ़ो, आप किसी तकरीर को ना सुनो, आप अपने वजूद पे गौर करो, खुदा की वहदानियत को पहचान लो, खुदा की रबूबियत को मान लो। अल्लाह हमें कैसे बनाता है। अल्लाह फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुदग़तन फ़खलक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खलक़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह फरमाता है इंसानों हमने कायनात की सारी चीज़ें लफ्ज़ कुल से बनाई हैं। कुल कह के ज़मीन बनाई, कुल कह के आसमान बनाया, कुल कह के चांद और सूरज सितारे बनाए, कुल कह के जमादात और नबातात बनाए, मगर तुम्हें बनाने की जब बारी आई तो हमने पानी की एक बूंद को
खून का एक फुटका किया, खून के फुटके को गोश्त का लुथड़ा किया, फिर गोश्त के लुथड़े को हड्डी किया, फिर उस हड्डी को हड्डी पर हमने गोश्त चढ़ाया, बोटी चढ़ाई, उसके ऊपर खाल चढ़ाई, फिर उसे इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया। खुद खुदा फरमाता है वत्तीन, तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, वतूर सीनीना, तूर सीना की कसम, वहाज़ल बलदिन अमीन, हर बलद अमीन की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलद अमीन की कसम, हमने कायनात में अगर कोई शय सबसे बेहतरीन बनाई तो इंसान बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बेशक सुभान। हमने अगर कोई शय सबसे बेहतरीन बनाई, और फरमाता है सूरह क़ियामा में आयत नंबर 4 पे अल्लाह फरमाता है बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्लाह फरमाता है लोगों, तुम्हारी सूरत हमसे जितनी खूबसूरत बन सकी हमने उतनी खूबसूरत बनाई, जितनी खूबसूरत बन सकती थी हमने इतनी खूबसूरत बनाई। अल्लाह वालों सुनो, कितनी खूबसूरत बनाई। दुनिया का मुसव्विर एक तस्वीर बनाता है, दुनिया का फोटोग्राफर एक फ़ोटो बनाता है। आप जब उससे कहते हैं कि साहब एक फ़ोटो बना दीजिए, तो वो आपसे कहता है कि हमें जो है एक रोशनदान चाहिए, एक रोशन कमरा चाहिए, एक बल्ब लाइट वाला कमरा चाहिए, उसमें बैठकर हम तस्वीर बनाएंगे। फिर जब वो तस्वीर बनाता है, तस्वीर जब वो बना चुकता है, आपको तस्वीर पकड़ाता है और कहता है साहब आपकी तस्वीर तैयार हो गई, इस तस्वीर पर जो है ले जाओ, इसको लेमिनेशन करा लेना, इस पर जो है फ्रेम चढ़वा लेना। इसलिए चढ़ा लेना कि अगर इसको आप जो है फ्रेम नहीं चढ़ाएंगे, अगर आप लेमिनेशन नहीं करवाएंगे तो धूल लग जाएगी, दीमक खा जाएगी, पानी लग जाएगा, तस्वीर गल जाएगी, आप इसके अंदर आग लग जाएगी, तस्वीर गल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया का मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो कहता है इन चीज़ों से बचाना, मगर हमारा रब जब हमारी तस्वीर बनाता है तो वो कहता है लोगों, हमें उजाले की ज़रूरत नहीं है, हमें बल्ब की ज़रूरत नहीं है, हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, हम अंधेरे में बनाते हैं, बल्कि अंधेरों में बनाते हैं। माँ के पेट का अंधेरा होता है, फिर रहम का अंधेरा होता है, फिर झिल्ली का अंधेरा होता है, तस्वीर बनाता है हमारा रब। और उन चीज़ों से बनाता है जिन चीज़ों से दुनिया का मुसव्विर तस्वीर बचाता है, मिट्टी से बचाता है, पानी से बचाता है, खून से बचाता है, मगर वो मुसव्विर है तस्वीर खून से बनाता है, तस्वीर पानी से बनाता है, तस्वीर गोश्त से बनाता है। वो कहता है दुनिया वालों, तुम खुदाई दावा करते हो तो करते रहो, मगर तुम जिन चीज़ों से तस्वीर बचाते हो हम उन चीज़ों से तस्वीर बनाते हैं, तुम जिनसे बचाते हो हम उनसे बनाते हैं, और ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। दुनिया का मुसव्विर आएगा, आपसे कहेगा फोटो साहब बना देंगे, दादा की बनानी है, पहले फोटो लाओ, फोटो पर फोटो बनाएंगे, पहले तस्वीर लाओ, जैसी नाक होगी वैसी बना देंगे, जैसी आंखें होंगी वैसी बना देंगे, जैसे कान होंगे वैसे बना देंगे, जैसी मूंछ होगी वैसी मूंछ बना देंगे, जैसी दाढ़ी होगी वैसी दाढ़ी बना देंगे, जैसे हाथ होंगे वैसे हाथ बना देंगे। मगर वो कब बनाएगा? जब वो देखेगा तस्वीर को तब बनाएगा, आपको खड़ा करेगा, तस्वीर को खड़ा करेगा, उसके बाद बनाएगा। मगर कुर्बान जाओ रब की शान पर, वो तस्वीर आदम से बनाना शुरू करता है, बनाते बनाते आज तक बनाई है, क़यामत तक जितने लोग आएंगे सबकी तस्वीरें वही बनाएगा। आज के साइंसदान को कहना पड़ा, साइंसदान को बोलना पड़ा, साइंसदानों को ये कहना पड़ा कि साइन मोतबर नहीं बचे, साइन मोतबर नहीं बचे, दस्तखत मोतबर नहीं बचे, अंगूठे का निशान मोतबर है, अंगूठे का निशान मोतबर है। क्यों मोतबर है? इसलिए साइन किसी की कोई कर सकता है, दस्तखत कोई की कोई कर सकता है, मगर अंगूठे अल्लाह पाक ने ऐसे बनाए हैं। इंसान जितने इंसान हैं उतने अंगूठे हैं, जितने इंसान हैं अलग अलग सबकी निशानियां हैं, सबकी आंखें अलग हैं, सबके हाथ अलग हैं, सबकी उंगली अलग है, सबके पोरे अलग हैं, सबके जिस्म अलग हैं, सबकी फिक्र अलग है, सबका पूरा जिस्म अलग है। अल्लाह ने करोड़ों लाखों अरबों मखलूक बनाई, मगर सारी मखलूक जुदा जुदा बनाई है। कोई
تصویر کسی سے مشابہ نہیں، کوئی تصویر کسی سے ملتی نہیں، کوئی تصویر کسی کا مشابہ نہیں ہو سکتی۔ اب بتائیے ہمارا رب کیسی تصویریں بناتا ہے، ہمارا رب کیسی تصویر بناتا ہے۔ تو حضرات خدائے پاک کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اتنی کائنات سجائی ہے اور پوری کائنات لفظ کن سے اس نے بنایا ہے۔ لہذا حضرت انسان کو اللہ نے خلقت بیدیہ، اللہ پاک نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دو شعر سماعت کریں، وہ بھی آپ ہم سے طرز میں نہ سنیں، آپ کو پورا مشاعرہ سن چکے ہیں مکمل طریقے سے، اور ابھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے بات سنیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، یہیں پر ختم کرتا ہوں، لیکن اللہ کی شان چند شعروں میں آپ سماعت کریں، اگر جو ہے آپ کی اجازت ہو تو شعر پڑھ لیں گے۔ جی جی ایک شاعر ہیں، وہ خدا کی شان کو یوں بیان کرتے ہیں، ہمیں لاکھوں نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، اور ان میں سے کون کون سی نعمت گنائی جائے، راتوں دن ہو جائیں چرچے کرتے رہیں، آپ گنا نہیں سکتے۔ فقط اتنا مان لو کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رب ہے، ہم اس کی جو ہے رعایا ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ شہنشاہ ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس سے ڈرتے رہیں، ہمارا یہ حق ہے ہم اسے اپنا مسجود و معبود بنائے رکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، بجلی کے کڑکنے سے، چمکنے کی صدا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، لہرائی ہوئی باد سحر باد صبا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، بلبل کی چہکنے سے تو چڑیوں کی نوا سے، ہیرے کی موتی کی نزاکت سے تو